So, good afternoon, students. Disclaimer: these model answers are framed just as a guidance to you, students. They may not be exactly as per board rules or directions. Okay. And the second point is that these model answers are framed to the best of our knowledge and experience. However, there may be few errors which should be ignored. We are trying our level best. Okay, let us start. Our mathematics 12th standard, 80 marks, 3 hours timing. So section A, it is in the form of MCQ. Question 1 is in the form of MCQ. Select and write the most appropriate answer from the given alternatives for each sub questions. Okay. And this is also a compulsory question. Now see, be careful about MCQs. So what I want to say, see, first MCQ is, if A set is 1, 2, 3, 4, 5, then which of the following is not true? Which is not true? So 4 options are there, and out of that 3 are true. Okay, so only 1 is not. Okay. So which is not true? A is 1, 2, 3, 4, 5. See option C. For every x belongs to A, x plus 6 greater than or equal to 9. This is not true, because if I take element 1 from set A, then 1 plus 6 equal to 7, which is not greater than or equal to 9. So wrong. Okay, so the answer is option C. Now be careful while writing the answers of MCQ. What you do in board examination, you saw, actually there is no need to solve. What is expected, you write like this: question 1, that 1, option C, for every x belongs to A, x plus C greater or equal to 9. This is the answer. Suppose you are not writing C. If you are writing for every x belongs to A, x plus C is greater or equal to 9, and you are not representing it by alphabet C, you may get 0 mark. Okay. So sometimes what happens, your all 8 MCQs are correctly written, but that alphabet is not written there. That's why you are not getting marks. So be careful about it. Is it clear? Then second MCQ, a line joining the points -2, 1, -8 and ABC is parallel to the line whose direction ratios are 6 to 3. Then values of ABC respectively are. Now see, this line is joining these 2 points, -2, 1, -8 and ABC. Okay. So what are the direction ratios of this line? Obviously, A plus 2, B minus 1 and C plus 8. These are the direction ratios. And subtract it. A plus 2. When you subtract A from A, you subtract -2, then you will get A plus 2. B minus 1 and C plus 8. These are the direction ratios of this line. And note that this line is parallel to the line with direction ratio 6 to 3. So this means you equate it with 6 to 3. Means A plus 2 is equated with 6. So you will get A is 4. Right? B minus 1 is equated with 2. So you will get 3. And C plus 8 is equated with 3. You will get -5. So what is the correct answer? Alphabet with alphabet A, 4, 3, -5. This is the correct way of writing. Number 2, yes, option A, 4, 3, -5. Sometimes see what I have seen in some papers, you are writing a question completely and you are writing option A, B, C, D, and then you make a tick mark to option A. No, that is not allowed. Is it clear? Because it is clearly mentioned in the question paper that a pattern of writing is alphabet A, 4, 3, -5. If you write only alphabet A, you will get 0 mark. If you write 4, 3, -5 only, you will get 0 mark. But if you write alphabet A with 4, 3, -5, then only you will get full marks. Is it clear? And note that in MCQs there is no need to write the question.
You read the question of MCQ, do the calculations if you want, because sometimes you cannot do it orally. You have to do calculations, and once the calculation is finished, then write question 1 or MCQ 2 option A 4 3 minus 5. This is the correct way of writing. Is it clear, beta? Then number 3, the principal solution of cot theta equal to minus root 3. See beta, cot theta is minus root 3 means tan theta is minus 1 by root 3. So tan theta is negative. And in which quadrant tan theta is negative? Second quadrant and fourth quadrant. Is it clear? So theta must be in second quadrant, as well as one theta is in second quadrant and next theta is in fourth quadrant. So obviously first two options are not possible, because this pi by 6 in first, I want the angle in second and fourth. So A and B are rejected. So for C, 5 pi by 6 is alright, but 8 pi by 6 is not in the fourth quadrant. Okay, so the correct option is D. Is it clear or not? Or you can go by the traditional method. Is it clear? Like that. Then fourth option, so the option is D. Then fourth one, the length of perpendicular from 163 to the line x equal to y minus 1 upon 2 equal to z minus 2 upon 3 is. The method is there. You equate this equation of line with lambda. So let us say x is equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 by 3 equal to lambda. This gives you x equal to 1, y equal to 2 lambda plus 1, and z equal to 3 lambda plus 2. You take it is the general point on the line. Okay, let us call it that point as P, and then let us call Q as 163. Then find the direction ratios of that PQ. Is it clear? Those direction ratios are perpendicular, and the direction ratios of line are 1, 2, 3. So the product of this the product of the direction ratios of line and the direction ratios of PQ, because PQ is perpendicular, that is equal to minus 1. Is it clear? So that will give the value of lambda, and once you get the value of lambda, you will get the coordinate of P on the line. Then calculate the distance PQ, and the option is A, root 13. Okay, slightly lengthy, but it is possible. Routine draw method. Next, then beta, uh, uh, okay. Then fifth one, the fx is x square minus 3x plus 4. Maxima we have to has minimum value at x equal to. So just find the derivative. What is fx is x square minus 3x plus 4. Its derivative is 2x minus 3. F dash x. Is it clear? And no need to find f2 dash x here, because this is a MCQ. So f dash x is 2x minus 3. What is the condition for how will you get the critical point for minimum, for maxima or minima? For maxima or minima, put f dash x equal to 0. This means 2x minus 3 is 0. This means x is 3 by 2. Is it clear or not? And 3 by 2 option is not in A, C, D. So the option is B. Is it clear? No need to test f2 dash, because it is very clearly we can get the answer from option B. Then MCQ 6, it is based on the property. MCQ is 6 is definite integral from 4 to 7 of L1 minus x whole square upon x square plus L1 minus x whole square dx equal to. Let us call this is I. This is based on that property. Integral a to b fx dx. What is that? Integral a to b fx dx. It is integral a to b f of a plus b minus x dx. That is based on this property, and the option is D, 3 by 2. Is it clear? Then, yes. So let us call this is I, na? Sixth problem. I is this. Then use the property, a to b fx ds property. Then you will get other integral as integral from 4 to 7 of x square upon x, same denominator, x square plus L1 minus x whole square. Then add those two, 2y equal to, yes, 2y equal to integral, you will get 4 to 7 dx, and from that you will get the option D as 3 by 2. Then
Then seventh one. In seventh MCQ, it is just the adjustment. See the denominator x square minus 1 and x square plus 4. When you add them, what you are getting? 2a square plus 3, which is the numerator. So what you do, you write that numerator 2s plus 3 as x square minus 1 plus x square plus 4. Is it clear बेटा? अपन क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? x square minus 1 plus x square plus 4 लिखेंगे, और फिर a plus b by c वाली जो प्रॉपर्टी है उससे अपन उसको सेपरेट करेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे, है ना. एक फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, है ना, होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और दूसरा है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला. इट इज यस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c. तो इसलिए आपको ऑप्शन बी मिलेगा बेटा उसका. क्लियर? देन MCQ 8th, mean and variance of binomial distribution. What is mean बेटा? NP, है ना. mean NP 4, variance NPQ 2. तो NP 4 और NPQ 2 है, तो उनका रेशियो अगर करते तो Q मिलेगा. सही है. और P प्लस Q इक्वल टू 1 से आपको P मिलेगा. सही है ना. और P मिलता है, P से N कैसा लाओगे? मीन NP4 है और P मिल गया आपको, इसलिए N मिलेगा. तो सब कुछ मिला आपको NPQ. तो आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 2 इक्वल टू NC2 P रेज टू 2 Q रेज टू N माइनस, है ना बेटा वो फॉर्मूला है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, इट इज NCX P रेज टू x Q रेज टू N माइनस x वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और आपका ऑप्शन आएगा D 28 अपॉन 246. दिस इज नॉट इन द सिंपल फॉर्म. इज इट क्लियर? सिंपल फॉर्म में नहीं दिया उसने. कभी कभी आप सिंपल फॉर्म लाते हो इसका करेक्ट और देखते हो कि ऑप्शन है नहीं, तो दिस इज नॉट इन द सिंपल फॉर्म. देन क्वेश्चन 2, वन क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड in cubic units given by the vectors a, b, c as concurrent edges where a, b, c are given, vectors are given. What is the volume of the parallelepiped? It is the box product ABC. Is it clear? And just find the box product ABC. Write the coefficients of ijk in A as the first row, coefficient of ijk in B as second row. Note that BE, vector B, j plus k. So it is 0i, है ना. तो देखो वेक्टर A का IJK के जो यहां लिखे हमने, है ना, 1 1 0 0 1 1 1 1 1, है ना, ABC के IJK के कोएफिशिएंट्स. और इसको जब सॉल्व करते तो हमको हमारा आंसर है 1 क्यूबिक यूनिट. कभी कभी अगर निगेटिव भी आ गया ना बेटा, तो उसको क्या करो? पॉजिटिव करना एक्चुअली, है ना. कभी कभी निगेटिव भी आ सकता है, बट वॉल्यूम कैन नॉट बी निगेटिव. यहां तो पॉजिटिव आता है. वैसा बॉक्स प्रोडक्ट ABC लिखोगे. नेक्स्ट, राइट द निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q. ये तो याद ही रहना चाहिए आपको, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P. देन फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2e रेज टू माइनस x प्लस 2 एट 0 4. बहुत लोगों ने ये इक्वेशन को y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2e रेज टू x लिखा, पता नहीं मुझे. इट इज 2e रेज टू माइनस x. तो स्लोप ऑफ द क्या करो, ये y का dy बाय dx ले लो. तो y इज एक्स स्क्वायर प्लस 2e रेज टू माइनस x प्लस 2 का dy बाय dx क्या आएगा? 2x माइनस 2e रेज टू माइनस x. और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता? -1 अपॉन dy बाय dx, है ना. ये क्या होता? -1 अपॉन dy बाय dx. और कौन से पॉइंट पे पूछा है आपको? 0 4 पे. तो ये dy बाय dx की वैल्यू 0 4 पे निकालो, मतलब x. और अब ये देखो यहाँ x ही है, तो x इक्वल टू सिर्फ 0 पुट करो यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा 1/2. बहुत जनों ने -1/2 निकाला था. देन ये जो क्वेश्चन 4 है, इवेल्युएट इंटीग्रल 2 टू द पावर log ऑफ 3 रेज टू x टू द बेस 2. ये लॉगरिथम के प्रॉपर्टी पे है बेटा. प्रॉपर्टी कैसे है हमारी, कि जैसा बेस है 2 और उसको पावर है log टू द बेस 2, और ये 3 रेज टू x है, तो एक्चुअली ये होता है 3 रेज टू x. जब बेस 2 है और उसको पावर log टू द बेस 2 होगा, तो जो भी अंदर होगा वो ही आंसर उसका होगा. इसका मतलब 3 रेज टू x, इंटीग्रल 3 रेज टू x ds. और आप अच्छे तरह से जानते हो आप इंटीग्रल, इट इज 3 रेज टू x अपॉन log 3. इज इट क्लियर? देन सेक्शन बी,
राइट द इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक ऐसा दिया है, ए फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ वुमन इन इट इज लिटरेट। तो देखो इफ से कहां से चालू होता है, इफ, इसको बोलो पी, यानी इफ छोड़ के पी को बोलो, द वुमन इन इट मत लिखना क्योंकि अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो पी इज मींस द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट एंड क्यू इज अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो यही वर्डिंग होना चाहिए, बिकम कहां पे है और इज कहां पे है। तो सिंबॉलिक फॉर्म है उसका पी इंप्लाइज क्यू, इफ देन फॉर्म है बेटा। तो इनवर्स क्या होता है, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन, सही है ना। तो निगेशन पी क्या करते हो, तो ये पी देखो, इसको रिजेक्ट कैसा करोगे, द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट बोलो। आपने लिखा इलिटरेट, गलत नहीं है, बट उसने ये नहीं बोला कि नॉट लिटरेट एज इलिटरेट। तो अगर उसने लिटरेट वर्ड बोला होगा तो अपन उसको रिजेक्ट कैसे करेंगे, नॉट लिटरेट करके। इलिटरेट लिखे तो भी चलता है, बट मुझे ऐसा लगता सिर्फ नॉट लगाओ, इसका निगेशन क्या होगा, द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट। इज इट क्लियर। तो निगेशन है, तो इफ द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट देन, इसको निगेट कैसा करोगे, देन ए फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, ऐसा लिखना बेटा, डज नॉट बिकम लिटरेट, ग्रामेटिकल इनवर्स। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, यानी निगेशन क्यू इसको कैसा करोगे, निगेट इफ, है ना, क्योंकि ये इंप्लीकेशन है इसलिए इफ से चलूंगा, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन, पी को निगेट कैसा करोगे, देन द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट। दिस इज द आइडियल, इज नॉट लिटरेट मुझे अच्छा लगता है। अगर आप इलिटरेट लिखे तो भी गलत तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है नॉट लिटरेट मेरी पसंद है कि नॉट लिटरेट लिखना चाहिए। तो इलिटरेट लिखे तो भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर। देन बेटा क्वेश्चन 4, find the adjoint of 1 minus 1 2 3। note that this is the two question। तो आप क्या करते हो बेटा, इनको इंटरचेंज करते 3 1 को, इनकी साइन चेंज करते हो और डायरेक्टली एडजॉइंट लिखते हो। हाँ अगर 1 मार्क का क्वेश्चन रहा तो चल सकता था, बट दिस इज नॉट दी 1 मार्क क्वेश्चन, तो इसलिए आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा। देन A11 इट इज -1 को पावर सफिक्स की पावर के एडिशन, ये A11 है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के 3 बचा है। ये पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा बेटा आपको, तो ही 1 मार्क मिलेगा। यानी 1 मार्क इसको A11 को फैक्टर्स निकालने को, को फैक्टर मैट्रिक्स को, और दूसरा मार्क एडजॉइंट को, ये ख्याल में रखना। 1 मार्क के लिए चल सकता था डायरेक्ट। देन क्वेश्चन 5, ट्रायंगल एबीसी में दिया है sin square a plus sin square b equal to sin square c, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज a right angle triangle। साइन रूल पे है बेटा ये, a अपॉन साइन ए इट इज b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू k। इससे साइन ए साइन b साइन c की वैल्यू कैलकुलेट करो। साइन ए आता k बाय ए, साइन भी आएगा k बाय b, साइन से आएगा k बाय c, और फिर ये लेफ्ट साइड में लिखो, ये पूरे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल हो जाता। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है बेटा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। इसका मतलब क्या होगा, दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट क्लियर। इसके बाद में प्रूव बाय वेक्टर मेथड that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side। ये ट्रायंगल दिया है आपको ABE, M AE का मिड पॉइंट दिया और N AC का मिड पॉइंट दिया। आपको प्रूव करना है कि NM पैरेलल टू थर्ड साइड और ये जो NM है इट इज हाफ ऑफ CE। अब देखो पोजीशन वेक्टर से मेथड से इजी जाता, बट उससे मत ट्राई करो। यहाँ पे प्योरली आप ट्रायंगल रूल लगा के इसको करो, डोंट यूज पोजीशन वेक्टर्स, इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं लगता उससे। तो ये एबीसी जो है इनके अब देखो ये एम मिड पॉइंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम इज द मिड पॉइंट, लेट द ट्रायंगल एबीसी, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी। अगर एम अगर एई का मिड पॉइंट है तो वेक्टर एम क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ वेक्टर ए एबी, है ना, एबी एबी है ये, एंड वेक्टर एन क्या होगा, हाफ ऑफ वेक्टर एसी। अब आपसे गलती क्या होती, आप ए इक्वल टू हाफ ए बी लिखते हो, आप वेक्टर नोटेशन यूज नहीं करते, इसमें मार जाएंगे बेटा। वेक्टर नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रायंगल लॉ कैसा होता,
जैसा ये देखो, ये ट्रायंगल ए एन एम है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूं। अगर आप वेक्टर एम चाहते हो ना, एम टू एन डायरेक्शन में, तो वेक्टर एम अगर बोलते हो आप, तो उसको लिखो वेक्टर ए एन माइनस वेक्टर ए एन। वो सब्ट्रैक्शन से आ ही जाएगा ट्रायंगल लॉ से। तो वेक्टर एम एन, इट इज वेक्टर ए एन माइनस वेक्टर ए एन। देखो ये इमीडिएट स्टेप है ना। उस पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो और उससे ट्रायंगल लॉ से आ भी सकते हो। अब ए एन इज हाफ ए सी एंड एम इज हाफ ए बी, तो हाफ ऑफ ए सी माइनस ए बी आएगा बेटा। अब देखो, ए सी माइनस ए बी, ये क्या आएगा, वेक्टर बी सी आएगा। वही है ना बेटा रूल, ए सी माइनस वेक्टर ए बी, इट इज वेक्टर बी सी। तो एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर बी सी लिखा है। तो इसलिए इसके आगे ये भी लिखना था आपने बेटा, यहाँ पे और एक लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एम एन, इसका मॉडुलस लेते हो, मॉडुलस ले तो क्या है, एम एन इक्वल टू हाफ बी सी, यानी एम एन लेंथ इज हाफ ऑफ बी सी, and Mn vector parallel to vector BC, because vector Mn is a scalar multiple of BC, therefore vector Mn is parallel to vector BC, therefore Mn parallel to BC। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा आप ऐड करो कि इसका मतलब होगा Mn इक्वल टू, यानी लेंथ Mn इक्वल टू हाफ BC एंड Mn पैरेलल टू BC, ऐसा अगर लिखा तो और अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? बाद में क्वेश्चन 7, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेक्टर आर इक्वल टू 5y माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k प्लस म्यू टाइम्स i माइनस 2j प्लस 3k। अब कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है बेटा, ये जो प्लेन है ना, ये कौन से पॉइंट से पास होता, ये 5y माइनस 2j माइनस 3k पॉइंट से पास होता है। और ये जो वेक्टर्स है, ये इसके प्लेन, ये प्लेन में ही रहते। तो इसका मतलब इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिए, इसको अगर वेक्टर बी बोलोगे i प्लस जे प्लस के को, और वेक्टर सी को i माइनस 2j प्लस 3k को वेक्टर सी बोलोगे, तो b और c वेक्टर ये प्लेन में है, तो इसीलिए b क्रॉस c वेक्टर ये प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। इसलिए वेक्टर एन एज b क्रॉस c हमने क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड किया, वो मिला हमको 5y माइनस 2j माइनस 3k। तो ये वेक्टर क्या हुआ बेटा, ये जो वेक्टर है वेक्टर एन, ये प्लेन को परपेंडिकुलर हुआ। तो ये प्लेन पास हो रहा 5y माइनस 2j प्लस 3k से, और उसको परपेंडिकुलर है 5y माइनस 2j माइनस 3k। इज इट क्लियर? तो वही है ना, वही पॉइंट है, जो पॉइंट है वही वही नॉर्मल है। इज इट क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अब फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए x1 y1 z1। अब x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस 3, ये x1 y1 z1। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, इसके कोएफिशिएंट्स 5 माइनस 2 माइनस 3 इज a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करो बेटा, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 3, x1 y1 z1 की वैल्यू ये, तो आपको 5x माइनस 2y माइनस 3z माइनस 38 इक्वल टू 0, ये आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन 8, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, है ना। तो देखो बेटा, ये मेथड ठीक है, बट और एक इजी भी मेथड है। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो उसको एक फॉर्मूला है कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो मॉडुलस लेना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 रहते, एक्स के जगह पे 0 रखो, वाई पे जगह पे 0 रखो, और जेड के जगह पे 0 रखो, राइट। और -6 वैसा ही लिखो, और अपॉन रूट ऑफ इसके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर को ऐड करो, 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो भी आपको डिस्टेंस मिलता है। या ये मेथड भी बहुत अच्छी है। ओरिजिन 0 0 दी है बेटा, OM perpendicular to the plane x minus 3y plus 4z minus 6. Cartesian equation of the plane in the normal form is Lx plus My plus Nz equal to P. तो एक्चुअली ये जो प्लेन है ना बेटा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 -3 4, ये डायरेक्शन रेशियोज है 1 -3 4। इससे डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, यानी डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4, -3 अपॉन वही स्क्वायर रूट से डिवाइड करो, 4 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे बेटा आपको। तो इसका मतलब अब जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या है, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। अब एलिमेंट अपने पास में है,
तो ये जो, तो एल की वैल्यू रखो। अब एल एक्स कैसा निकालोगे? एल है आपका 1/26x, एम है -3/√26y, एन है 4/√26z इक्वल टू। अब देखो बेटा, इसमें इसको √26 से डिवाइड किए तो ये कैसा होगा? इसको अगर √26 से डिवाइड करें तो ये आएगा 6/√26। और ये नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये जो p है ना बेटा, p अपना आया 6/√26, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी दूसरी मेथड है ना? तो दोनों में मेथड चलते हैं। देन नेक्स्ट डेरिवेटिव पे है, assume that f'3 is -1, g'2 is 5, g2 is 3 and y is f circle g of x, then find dy by dx at x equal to 2. Is it clear? अब देख लो, y is f circle g of x मतलब y equal to f circle g of x क्या होता? f of gx होता। अब dy by dx डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि मुझे dy by dx at x equal to 2 निकालना है। तो dy by ds क्या होगा? d by dx of f of gx। अब d by dx of f of gx कंपोजिट फंक्शन का क्या होता? जब डी बाई डेक्स ऑफ एफ ऑफ जीएस निकालना पड़ा तो सिर्फ इसको डैश लगा दो, यानी एफ डैश जीएक्स लिखो। लिखा बेटा? और बाद में क्या कर लो, जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसका डी बाई डी एक्स ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ जीएक्स। सही है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 निकालना है। तो जहां यहाँ पे एक्स, जहां एक्स दिख रहा वहां 2 रखो, है ना? डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ जी टू इंटू जी डैश 2। अब ये जी2 की वैल्यू 3 दी है बेटा आपको, देखो G2 की वैल्यू 3 दी है, तो G2 की वैल्यू 3 ये रखा, और G'2 की वैल्यू 5 दी है आपको, G'2 की वैल्यू 5 दी है। तो ये क्या आएगा? f'3 इंटू 5, और f'3 की वैल्यू कितनी दी है बेटा? -1, तो ये आएगा -5, है ना? dy by dx at x equal to 2 is -5। देन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला प्रॉब्लम है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 x ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx पूछा है। अब -1 और 2 में कौन से इंटीजर आते हैं? -1, 0, 1 और 2। तो हमने इसको सेपरेट किया, -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 2, है ना? इट इज इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 x ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। प्रॉपर्टी है ना बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल फ्रॉम a to c f x dx, इट इज इंटीग्रल। अगर a के बीच में b होगा, a के बाद b होगा और b के बाद c होगा, तो इंटीग्रल फ्रॉम a to c कैसा लिखते हैं आप? इंटीग्रल फ्रॉम a to b प्लस इंटीग्रल फ्रॉम b to c। तो वैसा अपन ने स्प्लिट किया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते? अब ये देखो, ये जो x है ये -1 इंक्लूड करता और 0 को एक्सक्लूड करता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होगा? जब नंबर -1 इंक्लूड करके और 0 एक्सक्लूड करके अगर रहता है x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 आती। तो ये आ गई -1 पे। यहाँ पे क्या आता बेटा? x की वैल्यू 0 to 1 में 0 इंक्लूड किया, 1 को छोड़ दिया, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेगा वैल्यू 0, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैल्यू लेगा 1, है ना? तो ये ऐसा आ गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और अपर लोअर लिमिट रख के आपका आंसर आएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इट इज ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 2 1 upon x square e raised to 1 upon s dx। सीधा 1 upon x को t पुट करो, यानी -1 by x square dx dt आया। अब इसके बाद में गलती क्या कर दो बेटा आप? यहाँ पे तो t पुट करोगे, e रेस टू t माइनस dt तो पुट करते, बट ये लिमिट चेंज करना है। दीज लिमिट्स आर विथ रिस्पेक्ट टू x, और आपने तो x का कन्वर्शन t में किया, तो इसलिए लिमिट चेंज करना बड़ा आवश्यक है। जब x इक्वल टू लोअर लिमिट 1 रहता तो t भी 1 रहेगा, और जब x इक्वल टू 2 रहेगा तो t इक्वल टू हाफ रहेगा। सही है? तो t इक्वल टू हाफ रहेगा, तो ये लिमिट चेंज कर दिए t के हिसाब से 1 to 1/2 e रेस टू t माइनस dt, ये माइनस बाजू में ले लिया, इंटीग्रल e रेस टू t dt तो e रेस टू t आता। ये 1 to 1/2 होना था यहाँ पे, है ना? माइनस e रेस टू t, ये 1/2 अपर लिमिट है, बट नीचे 1 होना था, और फिर अपर लिमिट की वैल्यू रख के और माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रख के अपने को आंसर मिलता है e माइनस रूट t। Then form the differential equation by eliminating arbitrary constants from a plus a by x। अब यहाँ पे देखो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी आपका dy by ds के साथ ही खत्म होना चाहिए। यहाँ पे d2y by ds स्क्वायर की बारी नहीं आना चाहिए, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
y इज a प्लस a अपॉन एच, तो dy बाई डी एस क्या आएगा, a का डेरिवेटिव 0 और माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, तो इससे a क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एस। तो ये जो a है ना बेटा माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एस, सीधा यहाँ पे रखो, यानी y इक्वल टू ये a की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एस प्लस a की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एस अपॉन एस, तो उसको आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy by ds equal to 0 is required differential equation. Question 13. Solve cos square x minus 2y equal to 1 minus 2 dy by dx. ये substitution method पे है. Put इसमें क्या करना पड़ेगा, x minus 2y को t put करना पड़ेगा. तो x minus 2y को t put करते हैं तो डेरिवेटिव with respect to x कर लो, तो ये आएगा 1 minus 2 dy by ds, it is dt by dx. इससे dy बाई dx निकाल, इससे मिलता है माइनस टू dy बाई dx की वैल्यू dt बाई dx माइनस वन, और ये जो माइनस टू dy बाई dx की वैल्यू ये राइट हैंड साइड में लिखो 1 के, कॉस स्क्वायर ये t रखा है अपन ने बेटा, तो कॉस स्क्वायर t इक्वल टू 1 और ये माइनस dy बाई dx की वैल्यू है dt बाई dx माइनस वन, सही है। तो ये आएगा cos स्क्वायर t इक्वल टू dt बाई dx, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट, इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, it is 1 by sec square t dt by dx, so integral sec square t dt is integral dx, integral sec square t, what is integral sec square t, tan t है ना, it is x plus c, और फिर से रख दो t is x minus 2y, so tan of x minus 2y it is x plus c, right? Then 14th example, the PMF of random variable x is given by x की, the values of x are given 1 2 3 and the probabilities are given by 1 by 5 2 by 5 2 by 5. Then find ex square. What is ex square beta? Formula is ex square is sigma x square pi. Note that अगर ex पूछते, अगर आपको मीन पूछते ex तो सिग्मा x pi होता, xi pi है कि नहीं, तो ex स्क्वायर अगर पूछा तो सिग्मा xi स्क्वायर pi, तो xi मतलब 1 2 3, x1 x2 x3 मतलब 1 2 3, और p1 p2 p3 मतलब ये 1 by 5 2 by 5 2 by 5, तो वैल्यू रखो ना, क्या आएगा x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 2 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 2 by 5 प्लस 3 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 2 by 5. That calculation will give you 27 by 5. This is also correct, or you can write that answer in decimal form also. Then next one, section C, 3 marks problems. Attempt any 8. Okay, determine whether the following statement pattern is tautology or contradiction or contingency. Frequently such types of questions they ask. So actually in such cases what happens, the 1 mark is to the column of p biconditional q. Okay, second mark is to the complete column of this p biconditional q and p or negation q, and third mark is to that whether it is tautology, contradiction or contingency. So see, only two statements are there, p and q. So p true true false false, q in q alternate true false, then negation q, p biconditional q, 1 mark for it. Now what is the how to write the truth values in the column of p biconditional q? p biconditional q में क्या रहता है, if both are true और both are false then only p biconditional q is true. तो both are true यहाँ पे है बेटा, तो इसलिए ट्रू आ गया, और both are false कहाँ पे है, यहाँ पे है लास्ट कॉलम में, तो इसलिए ट्रू आ गया, बाकी का फॉल्स फॉल्स, ऐसे इमीडिएट लिख सकते हैं। देन p और नॉट q, तो नॉट और में क्या होता, जैसा दो स्टेटमेंट का और होगा, if both are false then only or is false. तो p और निगेशन q कहां बोथ फॉल्स है, p और निगेशन q, p यहाँ p फॉल्स है और q निगेशन q यहाँ फॉल्स है, तो बोथ आर फॉल्स देन देयर और इज फॉल्स, अदरवाइज ऑल आर ट्रू, ऐसा क्विकली लिख सकते हो। बाद में क्या है, एंड है बेटा, है ना, ये एंड। अब एंड जो है उसके बारे में क्या बोलोगे, दो स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय एंड, if both are true then and is true, तो ये p बाइकंडीशनल q और p और निगेशन q ये both are true पहले इसमें है ना, इसलिए इट इज ट्रू, और आखिरी के इसमें भी है इसलिए ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स, तो ये दूसरा मार्क हुआ।
अब नाउ इज दिस ये कॉन्टिजेंसी होगा, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नाइदर ऑल टी नॉर और फॉल्स, देयरफॉर द गिवन पैटर्न इज ए कॉन्टिजेंसी, है ना। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देन ये तो किताब का ही है, कोसाइन रूल। वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। बहुत जनों ने गलती क्या किया यहाँ पे, दे आर पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ cos ए इन द राइट साइड। cos ए का जो है ना, cos ए जो है, तो cos ए ये होता है ना बेटा, cos ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा टाइप से रख के उन्होंने लिया। अरे ये तो प्रूव करना है आपको, यहाँ लिखा है ना बेटा, प्रूव दैट, ये फॉर्मूला प्रूव करना है। मतलब ये किताब में जैसा दिया है वैसा वही मेथड यूज करो। तो ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। अब आपको ए स्क्वायर अगर बोले तो वर्टेक्स इसका ए ओरिजिन पे रखो, और बाद में बी जो है ना, अलोंग एक्स एक्सिस रखो, और सी ऊपर रखो, है ना, जनरल ट्रायंगल। देन व्हाट हैपेंस, द व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। बहुत जनों ने सी से परपेंडिकुलर डाल दिया एबी पे। एक्चुअली दिस इज द जनरल ट्रायंगल बेटा, दिस इज द जनरल ट्रायंगल। तो सी के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एंगल ए है और ये डिस्टेंस सी है, बी है। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी कॉस ए और वाई कोऑर्डिनेट होगा बी साइन ए। और सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा दो बेटा, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस, ये ए के कोऑर्डिनेट 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट बी कॉस ए बी साइन ए, और ये डिस्टेंस है बी, है ना। ये आपको बी कॉस, अच्छा ए स्क्वायर, ये इसको डिस्टेंस फार्मूला, मुझे ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ये लगाओ ना बेटा, ए स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर ले लो। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से c माइनस बी कॉस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी साइन ए होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, उसमें जो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है उसको 1 रखोगे और आपको आंसर मिलेगा। सही है ना। तो ये ख्याल में रखना। आपने गलती क्या किया बेटा, आपको पूछा है ए स्क्वायर इक्वल टू पूछा है, आपने प्रूव किया बी स्क्वायर इक्वल टू या सी स्क्वायर इक्वल टू। तो ऐसा मत करना, है ना। जो पूछा है तो अगर आपको ए स्क्वायर पूछा है तो वर्टेक्स ए को रखो ना ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे क्या रखना, तो ये स्टडी कर लो। कभी कभी एग्जामिनेशन में बी स्क्वायर को भी पूछेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू, वो भी तैयारी करके रखो। या सी स्क्वायर अगर पूछेंगे तो कैसे डायग्राम कर लेना। तो ये प्रिपरेशन आपने होमवर्क करना चाहिए अच्छे से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है ना। ओके, उसके बाद में ये क्वेश्चन 17 is most important beta. In sometimes the such type of problems were asked for 4 marks also. Prove that sin square 3 by 5 plus cos square cosine inverse 3 by 5 plus cos inverse 12 by 13, it is sin inverse 56 by 65. तो sin square 3 by 5 को अल्फा मान लो लेफ्ट साइड में, cos square sin inverse 3 by 5 को अल्फा मान लो, cos inverse 12 by 13 को बीटा मान लो। इज इट क्लियर। तो और इसको सपोज गामा मान लो या वैसा ही रखो। तो इसको अगर साइन इनवर्स 3/5 अगर अल्फा होगा तो इन्वर्ट किए तो क्या होगा, साइन अल्फा 3/5 आएगा। तो कॉस अल्फा क्या आता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला यूज करके √16/25। अब एक्चुअली ये क्या है बेटा कि ये जो अल्फा एंगल है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव रहता है, इसलिए कॉस अल्फा की पॉजिटिव रूट लेना, कॉस अल्फा इज 4/5। देन cos इनवर्स 12/13 को बीटा मान लिया आपने, इसको इन्वर्ट कर दो, इसका मतलब cos बीटा इज 12/13, sin बीटा इज √1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। इससे कैलकुलेशन करोगे 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा √25/169। और पॉजिटिव, ये पहले बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण इसका रूट रहेगा पॉजिटिव 5/13। उसके बाद में क्या कंसिडर करो बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा कंसिडर करो। क्यों, क्योंकि मैंने इसको अल्फा माना और इसको बीटा माना। इज इट क्लियर। और ये जो राइट साइड ये साइन इनवर्स में है ना। तो साइन इनवर्स अगर इधर आप इन्वर्ट करते हो, क्योंकि इसको अल्फा है और ये बीटा है, यानी जस्ट ये अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन इनवर्स अगर इधर लाते हो तो साइन होगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इसलिए साइन अल्फा प्लस बीटा कंसिडर करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स अगर रहता तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कंसिडर करना पड़ता था। इज इट क्लियर। तो कंसिडर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा
और आपका आंसर आना चाहिए 56/65। तो देखो, कंसिडर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लिख लिया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू रख लिया आपने, और आपको मिला ये 56/65। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 56/65 आती, तो इन्वर्ट, अगर इफ यू टेक इन्वर्शन, इन्वर्शन से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी साइन इनवर्स 56/65, एंड वी नो दैट अल्फा इज अवर साइन इनवर्स 3/5 एंड बीटा इज कॉस इनवर्स 12/13। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई है। देन क्वेश्चन 18, the proof is in the book. Many times this proof was asked. Theta is the acute angle between the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Then prove that tan theta is modulus of 2 times root a square minus ab upon a plus b, where a plus b not equal to 0. तो अगर ये जो लाइन्स है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो दिस रिप्रेजेंट द टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ दिस लाइन्स, है ना, एक है लाइन y इक्वल टू m1x और दूसरी है y इक्वल टू m2x। तो ये लिखना पड़ता है, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। तो व्हाट इज m1 प्लस m2 माइनस 2h by b एंड m1 m2 इज a by b, इसको एक मार्क है। देन m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, क्योंकि अपने को फॉर्मूला क्या है, एक्यूट एंगल निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर इज क्लियर, एंगल बिटवीन द टू लाइंस विच स्लोप्स m1 एंड m2। तो इसलिए मुझे जरूरत क्या है बेटा, m1 माइनस m2 की है। तो अपने पास में क्या है, अपने पास में सिर्फ m1 प्लस m2 है ना, ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो m1 प्लस m2 इज माइनस 2h by b और m1 m2 इज a by b, यही है। इसलिए मुझे जरूरत है m1 माइनस m2 होल स्क्वायर की। तो फॉर्मूला लगा लो, स्कूल वाला फॉर्मूला, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। पुट द वैल्यू ऑफ m1 plus m2 as minus 2h by b and m1 m2 as a by b. Do the calculations. It is 4 times a square minus ab upon b square. अब मिस्टेक कहां होती बोर्ड में आपकी, यहां पे होती। m1 minus m2 whole square is 4 times a square minus ab upon b square। तो जब रूट लोगे तो कैसा लिखना, therefore m1 minus m2 is प्लस और माइनस लिखना है। आप प्लस और माइनस नहीं लिखे तो एक मार्क चला जाता है बोर्ड में। प्लस और माइनस 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, एक तो प्लस और माइनस लिखो, और अगर प्लस और माइनस नहीं लिखना हो तो कैसा लिख सकते, m1 माइनस m2 इक्वल टू मॉड में लिखो, मॉड ऑफ 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो फिर मॉड के अंदर उसको प्रिजर्व करो, और मॉड अगर नहीं लिखते तो कंपल्सरीली प्लस और माइनस लिखो, तो ही आपको ये 1 मार्क मिलेगा, ये ख्याल में रखना है आपको। देन फॉर्मूला यूज किया है बेटा, tan थीटा इज मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 माइनस m2 की वैल्यू है हमारे पास में 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी प्लस माइनस में ये 1 लिख लिया, है ना, ये b, ये 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू a बाई बी है, कैलकुलेशन कर लिए, tan थीटा मिल गया हमको, मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Actually, the theorems on straight lines are very important. Then, question 19 is very good. Sometimes this process type of problem was asked for 4 marks. See how it is. Triangle OAB is formed by the lines x square minus 4xy plus y square equal to 0. And line 2x plus 3y minus 1 equal to 0. अब ये जो लाइन है ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। सो इट रिप्रेजेंट्स द टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो लाइंस कौन सी है बेटा, ये है ओ ए एंड ओ बी लाइन, इनका कंबाइंड इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन ए बी है ना, इसको मान लो तीसरी लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। रफ स्केच होना अपने को कोई ज्यादा उसकी एग्जैक्ट लाइन नहीं होना। तो ये जो ए बी लाइन है ये 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और ये जो दो लाइंस है ये ओ और ओ बी है ना, ये। तो ये ट्रायंगल बन गया है फिर ओ ए बी का, ओ ए बी ट्रायंगल। अब क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर मीडियन डालोगे मतलब बी ए का मिड पॉइंट पी लेना पड़ेगा, और ये जो ओपी मीडियन है उसका आपको इक्वेशन पूछा है। तो उसको कैसा प्रूव करते हैं, ये सॉल्व में है। देखो इसको ऐसा करते हैं अपन,
लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x1 y1 एंड बी के x2 y2 मान, है ना। अब P मिड पॉइंट है बेटा ए बी का, तो मिड पॉइंट फार्मूला से P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला से P के कोऑर्डिनेट होंगे। बाद में क्या करो आप, बाद में आप ए और बी के कोऑर्डिनेट, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये कंबाइंड इक्वेशन और ये सेपरेट लाइन का इक्वेशन, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट कैसा निकालोगे, बाय सॉल्विंग दोज इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2s प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा ये दो लाइंस और ये तीसरी लाइन, ये जहां इंटरसेक्ट होते वो ए और बी पॉइंट है। तो जब आप इनको दोनों को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू ले लेते, y इज इक्वल टू क्या मिलता है यहाँ ये इक्वेशन से 1 माइनस 2x/3, और फिर ये y की वैल्यू साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन में रखते। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x, y की वैल्यू रखी, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2s/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जब सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 37x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर x1 एंड x2 अगर रूट होंगे, आपको पता है बेटा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 होगा और अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता, माइनस b बाई a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स x1 एंड x2 अगर है, तो क्योंकि इसके रूट x1 एंड x2 ही होंगे, क्योंकि a का x कोऑर्डिनेट क्या है x1 और b का x कोऑर्डिनेट क्या है x2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे x1 एंड x2 व्हिच आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो व्हाट इज x1 प्लस x2 माइनस b बाय a। तो माइनस b, a 37 है, b माइनस 16 है, c 1 है, तो माइनस b बाय a क्या होगा बेटा 16 बाय 37। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू मिल गई। तो x1 प्लस x2 बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी, 2 से डिवाइड कर दो 8 बाय 37। अब p के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, p के कोऑर्डिनेट है। तो उसको x1 प्लस x2 बाई 2 के जगह पे 8 बाय 37 है। अब आपको पता है कि p जो पॉइंट है, इट लाइज ऑन द लाइन 2s प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। जब पॉइंट P अगर लाइन ये लाइन पे लाए होता तो P के कोऑर्डिनेट ये लाइन को इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो P का x कोऑर्डिनेट क्या है x1 प्लस x2 बाई 2, उसकी वैल्यू क्या है 8 बाय 37। इसका मतलब x की वैल्यू आप 8 बाय 37 रखोगे, क्योंकि P का x कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट जो x1 प्लस x2 बाई 2, वो यहाँ पे रख के ये लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। यानी 2 टाइम्स x1 प्लस x2 बाई 2, और x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 8 बाय 37 है, इसलिए 2 टाइम्स 8 बाय 37 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू मिलने से आपको अब p का y कोऑर्डिनेट मिला, मतलब क्या y1 प्लस y2 बाई 2 की वैल्यू मिली। सही है बेटा। तो p के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 8 बाय 37, 7 बाय 37। y कोऑर्डिनेट उसका y1 प्लस y2 बाई 2। अब p का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब OP का इक्वेशन कैसा निकालोगे, ये मेथड से भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाला, बट इजी मेथड ऐसा रहता था कि P के जो कोऑर्डिनेट आपको 8 बाय 37, 7 बाय 37 मिले, तो इजी मेथड ऐसी भी हो सकती थी। देखो P का कोऑर्डिनेट 8 बाय 37, 7 बाय 37 है, तो इसका OP इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका स्लोप क्या रहता y बाय x। तो स्लोप क्या रहता था 7/8, इसका स्लोप रहता y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो OP का स्लोप मिला, और OP इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी m की वैल्यू मिली आपको 7/8, और OP इज द पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो OP का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू mx, यानी y इक्वल टू m की क्या वैल्यू मिली आपको 7/8x। तो सीधा सीधा y इक्वल टू 7/8x, ऐसा आंसर आपको मिलता था। या ऐसा भी 2 पॉइंट फॉर्म से भी आप जा सकते हो, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। अब x2 y2 तो 0 0 ये ओरिजिन आपकी है ना, इक्वल टू x माइनस, है ना, ऐसे ये 2 पॉइंट फॉर्म से भी जा सकते हो। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया किताब में ऐसा, पर ऐसा भी चल सकता। किताब में ये सॉल्व प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पे करेक्शन है ये प्रॉब्लम में, बीपी अपॉन पी होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कुछ तो भी। ये भी 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, यहाँ 3 मार्क का पूछा है। इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है बेटा,
यहाँ पे क्या दिया है कि ई ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी एंड ए सी। ये ट्राइंगल ए बी सी है, डी पॉइंट बी सी पे है और ई पॉइंट ए सी पे है, ऐसा बोलता है। सच दैट बी डी इज 2DC। ये जो बीडी लेंथ है ना, बीडी, इट इज 2 टाइम्स डीसी। बीडी लेंथ डीसी से डबल है, यानी डीसी अगर 1 यूनिट अगर होगी तो बीडी होगी 2 यूनिट। सही है बेटा। और ऐसा बोला है कि एई इज थ्राइस ईसी, यानी अगर मैं ईसी 1 लेता हूं तो मुझे एई 3 यूनिट्स लेना पड़ेगा। तो ये रेशियो दे दिया, तो ऐसा दे दिया। एंड लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बी। ये एडी और बीई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी। सही है। तो फाइंड बीपी अपॉन पीई। बीपी अपॉन पीई पूछा, तो आप क्या मान लो बेटा, सपोज अब ये पी पॉइंट, सपोज अब पी पॉइंट कैसा है, बीई पे भी है और एडी पे भी है। तो सबसे पहले ये अपन ने किया, ये ए बी, ये कितने पॉइंट्स है, ए बी सी डी ई, इनके पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी ले लिए है ना, ए बी सी के, और डी और ई भी लेना था, है ना। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बेटा, ये 2s2 1 से डिवाइड करता है ना बीसी को, तो सेक्शन फार्मूला से लेना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर डी इज 2 टाइम्स वेक्टर सी प्लस 1 टाइम्स वेक्टर बी अपॉन 2 + 3, ऐसा ले लिया। बाद में ई के भी पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला से ना। E divides AC internally in the ratio 3s to 1। E के पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3 वेक्टर C प्लस 1 इंटू वेक्टर A अपॉन 3+1, यानी 3C + A/4। तो D और E मिल गया। उसके बाद में क्या करना आपको, ये जो P पॉइंट है ये BE पे लाए है, और अपने को दिया नहीं कौन से रेशियो में डिवाइड करता। तो मान लो P डिवाइड्स BE इंटरनली इन द रेशियो K/1, और ये जो है बेटा P पॉइंट, ये एडी पे भी लाइन लाए होता और अपने को रेशियो नहीं दिया है। तो मान लो P डिवाइड्स एडी इंटरनली इन द रेशियो MS/1, और फिर सेक्शन फार्मूला से P को सेक्शन फार्मूला लगा दो। व्हाट इज P एक्चुअली, ये देखो बीपीई है ना, P डिवाइड्स बीई इंटरनली इन द रेशियो K/1। तो वेक्टर P क्या होगा, K टाइम्स वेक्टर E प्लस 1 टाइम्स वेक्टर B अपॉन K+1, ऐसा लगाओगे। और यहां सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो P डिवाइड्स एडी इंटरनली इन द रेशियो M/1। तो वेक्टर P क्या होगा, एम इंटू वेक्टर डी प्लस 1 इंटू वेक्टर ए अपॉन M+1, ये वेक्टर P होगा। यानी वेक्टर P आपने दो तरह से कैलकुलेट किया, एक एडी सेगमेंट पे से वेक्टर P कैलकुलेट किया, और दूसरा बीई सेगमेंट से वेक्टर P कैलकुलेट किया। बस उसको इक्वेट कर दो, है ना। वेक्टर P ये क्या, एम डी है ना, प्लस ए अपॉन M+1। अब डी के पोजीशन वेक्टर अपने को पता है बेटा, 2C + B अपॉन 3। हाँ, और यहाँ पे भी P इज B + KE अपॉन K+1, और E के पोजीशन वेक्टर अपने को पता थे तो ये रख दिया हमने। बाद में क्या किया बेटा, ये वेक्टर P ये साइड और ये वेक्टर P की ये साइड, ये हमने इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद में करस्पॉन्डिंग वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वेट कर दिए, है ना। यहां से मिलेगा ना आपको, जैसा ये इक्वेट करने के बाद में क्या होगा, वेक्टर ए टाइम्स कौन सा स्केलर है प्लस अदर स्केलर टाइम्स वेक्टर बी प्लस 3k/4 टाइम्स K+1 वेक्टर सी, ऐसा इक्वेट किया। देखो ना ये मिलता है ना बेटा। जैसे देखो वेक्टर ए के कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 3/3 टाइम्स M+1 वेक्टर ए, मतलब 1/M+1 वेक्टर ए। देखो ये आ गया। यहाँ पे वेक्टर बी का क्या होगा कोएफिशिएंट, M/3 टाइम्स M+1 वेक्टर बी। देखो ये ऐसा है, ऐसा यहाँ पे भी वेक्टर ए क्या होगा, यहाँ पे K टाइम्स वेक्टर ए अपॉन 4 टाइम्स K+1। देखो ऐसा, तो ऐसा इक्वेट कर लेना। तो ए वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो, वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो, वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो। वेक्टर डी के तो क्या होगा इक्वेट, K/4 टाइम्स K+1, इट इज 1/M+1। वेक्टर बी और वेक्टर सी से अगर इक्वेट किया तो ये आएगा। इसमें आपको के को वी आर इंटरेस्टेड इन रेशियो के। तो देखो बेटा, आई थिंक इक्वेशन 1 से ये देखो, दो सेकंड और थर्ड इक्वेशन यहाँ एम प्रेजेंट है, इनको डिवाइड कर दो 3/2, तो एम कट ही जाता, M+1 भी कटेगा और एम भी मिलेगा, कटेगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट के की वैल्यू मिलेगी, और के की वैल्यू मिलती है 8/3, और वही तो बीपी अपॉन पी है। के क्या है, बीपी अपॉन पी। तो ऐसे टाइप से आप कर सकते हो। क्वेश्चन 21,
if ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then show that d2y by dx square equal to 0. इसमें क्या करना पड़ता बेटा, एक तो आपको a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, इससे dy by dx निकालो, है ना। तो इसको dy by dx क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद a स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x, अब 2h तो कांस्टेंट है, अब d by dx ऑफ xy क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल से x dy by dx प्लस y आएगा, प्लस b बाजू में आएगा, कांस्टेंट है, d by dx ऑफ y स्क्वायर क्या आता, 2by dy by dx, डिवाइड बाय 2 कर लो, थोड़ा सिंपल कर दो प्रॉब्लम, ax प्लस h टाइम्स x dy by dx प्लस y प्लस dy dy by dx इक्वल टू 0। यहां से क्या करो बेटा, यहां से dy by dx कलेक्ट कर लो, dy by dx अगर कलेक्ट करते तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में hx प्लस by आएगा, और ये ax है ना, ax और ये hy है, ये राइट साइड में ट्रांसफर करो, ये आएगा माइनस ax माइनस hy राइट साइड में, तो dy by dx क्या आएगा, माइनस ax प्लस hy अपॉन hs प्लस by, इसको बोल दो 2। इक्वेशन 1 आपका जो दिया है 1, dy by dx इसको 2 बोल दो। अब एक एडजस्टमेंट है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, ये 2hxy को लिखो hxy प्लस hxy, और बाद में x कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन लेते तो x टाइम्स ax प्लस hy आएगा, और यहाँ पे y कॉमन ले लो तो hx प्लस by इक्वल आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by की वैल्यू माइनस y बाई x मिलती है। यहाँ पे भी देखो बेटा, माइनस ax प्लस hy अपॉन hs प्लस by, और यहाँ पे भी ax प्लस hy अपॉन hs प्लस by, तो ये ax प्लस h, ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस y बाई x से यहाँ पे रखो, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई ds मिलेगा y बाई x, और जैसे dy बाई ds इक्वल टू y बाई x है, अपने को d2y बाई ds स्क्वायर होना, तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, what is d2y by ds square, it is d by dx of y by x। now apply division rule, what is derivative of numerator upon denominator, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator into denominator square, है ना, डिवीजन रूल। ये आएगा d by dx of y by, it is x into derivative of y with respect to x minus y into d by dx of x, वो 1 आता है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो dy by dx की वैल्यू y by x रख देना बेटा, है ना, dy by dx की वैल्यू अपनी क्या है, y by x, यहाँ पे y by x अगर रखे तो एक से कैंसिल होके 0 आता है, d2y by d स्क्वायर आता है 0। देन क्वेश्चन 22, show that fx equal to 3x plus 1 upon 3x is decreasing in 1 by 9 1 by 3। there are two methods, एक तो ये डिक्रीजिंग का क्या है, अगर ये fx है 3x plus 1 upon 3x, इससे f dash x निकालो, f dash x मिला 3 minus 1 upon 3x स्क्वायर। अब डिक्रीजिंग क्या कब होता, if f dash x लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 देन f x डिक्रीजिंग। तो एक मेथड ऐसे है कि जो इंटरवल दिया है उससे जज करो, आपकी वैल्यू x क्या दी है 1 by 9, x जो है 1 by 9 और 1 by 3 के बीच में है, तो यहां से फिर उसमें f dash x इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो। अब देखो f dash x से आपका 3 minus 1 upon 3 स्क्वायर, तो पहले x स्क्वायर इंट्रोड्यूस करो, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 1 by 81 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1 by 9, स्क्वायरिंग कर दिया। अब मुझे 3x स्क्वायर चाहिए, है ना, धीरे धीरे x स्क्वायर मिल गया, अब 3x का तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 1 by 27 लेस देन 3x स्क्वायर लेस देन 1 by 3। अब 3x स्क्वायर मिला तो अपने को रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन 3x स्क्वायर, अब जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, यानी 27 आएगा और ये 3 आएगा, है ना, और लेस का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये लेस का ग्रेटर देन होगा, इनइक्वालिटी के रूल। बाद में क्या लाना है मुझे, माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर लाना है ना, माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर लाना है, तो माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रेटर देन का फिर से लेस देन होगा, तो माइनस 27, यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, और ये ग्रेटर का होगा लेस। और बाद में क्या चाहिए मुझे, 3 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर चाहिए, है ना, f डैश x में, तो मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं 3 जब ऐड करूंगा इसमें तो ये माइनस 24 होगा, और यहाँ पे 3 ऐड करूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब f डैश x लेस देन 0, अगर आपका x 1 by 9 और 1 by 3 के बीच में होगा, 1 by 9 लेस देन x लेस देन 1 by 3, तो आपका f डैश x लेस देन 0 रहता, इसका मतलब f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 1 by 9 1 by 3। एक तो एक मेथड है, दूसरी मेथड ऐसी है कि f डैश x निकालो और देन ऐसा लिखो कि f डैश लेस देन 0, इनइक्वालिटी सॉल्व करो, कभी कभी वो नंबर लाइन लेते हो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करके आप इंटरवल लेते हो, वो इंटरवल बड़ा आएगा इससे, और वो बड़े इंटरवल में अगर वो इंटरवल जो आता वो 1 by 9 1 by 3 से बड़ा आता,
उसमें आपका एफ डैशेस निगेटिव है, फिर आप बोल देना तो बड़े इंटरवल में अगर एफ डैशेस निगेटिव है तो दिस इंटरवल 1/9 1/3 इज द सबसेट ऑफ दैट, ये छोटा है उसमें, तो डेफिनेटली इट इज डिक्रीजिंग, ये भी चल सकता ऐसे टाइप से। देन क्वेश्चन 23, वाटर इज पोर्ड, ये इन्वर्टेड कोन है, वाटर इसमें पोर कर रहे हैं, वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल यानी ये है 30 डिग्री, ये एंगल है बेटा, सो दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, यानी ये डेप्थ, ये है कोन की डेप्थ है, ये है, ये डेप्थ है कोन की, ये रेडियस है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। Water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, so that its depth measured along the axis. What is the axis of the cone? Vertical axis. Increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of the water increasing when the depth is 2 centimeter. अब देखो बेटा ये ओरिजिनल कोन दिया है, और इसमें जब वाटर अगर पोर करोगे तो वाटर भी कोन की शेप लेगा, इट विल बिकम ए वाटर कोन, सही है। तो वाटर कोन का बारे में बोलेंगे, लेट आर बी द रेडियस, ये वाटर कोन की रेडियस है आर, एंड एच इज द हाइट, एंड थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट, थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कोन, ये जो वाटर कोन है इसकी वॉल्यूम, ओके। अब ये हाइट कैसे बढ़ी, जैसा वाटर आप पोर कर रहे हो तो हाइट कैसी इंक्रीज हो रही, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, जैसा वाटर उसमें जो गिर रहा है तो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर से हाइट बढ़ रही, यानी देखो ये वाटर आप डाल रहे हो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और वो कांस्टेंट स्पीड से, तो जैसा वाटर 1 सेकंड होगा तो कितना हाइट मिलेगा, 1 सेंटीमीटर से राइज होगा, दिस मीन्स dh/dt इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। थीटा क्या दिया है बेटा 30 डिग्री, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या दिया है, वाटर कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि आर रेडियस है और एच है, ये कोन की नहीं, बड़े कोन की नहीं बेटा, वाटर कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर और एच में रिलेशन कैसा होगा, आर और एच में ये 30 डिग्री एंगल है, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा आर बाय एच, तो इसलिए टैन थीटा 30 इज आर बाय एच, और टैन 30 वैल्यू अपने को पता है, इसलिए आपको मिलेगा आर इक्वल टू एच टैन 30, इसका मतलब आर मिलेगा एच बाय √3। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना। अब आर के बदले में एच बाय √3 रखो और वी को एच में ला लो, वी आ गया 4/9 एच क्यूब, पाई बाय 9 एच क्यूब। देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, आपको डीवी बाय dt निकालो, डीवी बाय dt क्या होगा पाई बाय 9, डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब क्या होता है 3h² dh/dt, तो ये आता है कैलकुलेशन डीवी बाई डी टी पाई बाय 3h² dh/dt। अब आपको dh/dt 2 सेंटीमीटर दिया है, आपको सॉरी h दिया है 2 सेंटीमीटर, h जब 2 सेंटीमीटर रहेगा और dh/dt आपको 1 दिया है बेटा, हाइट कितने इससे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइज हो रही, तो dh/dt आपको दिया है 1, और h जब 2 होगा हाइट जब वो कोन की, तो h इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करना है, तो आंसर क्या आएगा 4/3। यहाँ पे एक ख्याल में रखना, तो ये ख्याल में बाद में रखना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4π/3, ये यूनिट लिखना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम है बेटा, तो यूनिट लिखना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आप क्या लिखते हो, द आंसर इज 4π/3 वॉल्यूम, यू तो 3 में से 2 ही मार्क मिलेंगे, तो यूनिट टू राइट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम अगर होगा, अगर यूनिट नहीं होगा तो क्यूबिक यूनिट पर सेकंड या पर ऐसा यूनिट टाइम ऐसा लिखना, क्यूबिक यूनिट पर यूनिट टाइम, अगर यूनिट नहीं होगा तो यूनिट लिखना चाहिए आपने, नहीं तो मार्क्स जा सकते हैं आपके। क्वेश्चन 24, इवेल्युएट इंटीग्रल 1/√sin³ sin x प्लस अल्फा dx, तो यहाँ पे क्या करना बेटा एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे क्या करना कि इसको साइन, ये जो साइन से मल्टीप्लाई करो साइन x से और डिवाइड करो, तो ये आएगा sin पावर 4x और इसको अपॉन होगा sin x, ये sin पावर 4x रूट के बाहर sin स्क्वायर x आएगा, और इसको साइन ऑफ x प्लस a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करो, sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा अपॉन sin x, और बाद में 1/sin स्क्वायर x जो है वो cos स्क्वायर x dx आता, और इसको सेपरेट कर दो a प्लस बी बाई सी से, तो ये आएगा cos अल्फा, क्योंकि साइन एस कटेगा और यहाँ पे cot x sin अल्फा मिलेगा, और ये जो अंदर वाला जो है ना रूट के अंदर cos अल्फा प्लस sin अल्फा cot x, इसको t पुट करो एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो d बाई डी, तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है,
तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, साइन अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा टाइम्स कॉट एक्स का अल्फा क्या डेरिवेटिव क्या होता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इट इज डीटी, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होता माइनस डीटी बाय साइन अल्फा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का लिखा आपने माइनस डीटी बाय साइन अल्फा और ये रूट ऑफ टी लिखा। अब ये तो इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू टी है बेटा, है ना, तो इसलिए साइन अल्फा तो बाजू में आ जाएगा माइनस वन बाय साइन अल्फा, टी रेस टू पावर न्यूमरेटर में ला लिया माइनस हाफ पावर हाफ डी टी, और इंटीग्रल एक्स रेस टू एन से क्या होगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रल क्या होता टू टाइम्स रूट टी, है ना, प्लस सी, और टी को फिर से वैल्यू रख दिया अपन ने कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, और ऐसा टाइप से आपको आंसर मिल गया। इन क्वेश्चन 25, a coin is tossed so that its head is 3 times as likely to occur as tail, हेड आने की पॉसिबिलिटी 3 टाइम ज्यादा है टेल से, यानी टेल की पॉसिबिलिटी 1 होगी तो हेड की 3 होगी, यानी 4 अटेम्प्ट्स अगर होते हैं तो 3 अटेम्प्ट्स हेड आएगा और 1 अटेम्प्ट टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी 3/4 और टेल की आएगी 1/4। इफ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। 2 मेथड से आ सकता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप कर सकते हो और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया, कॉइन इज टॉस ट्वाइस बोल रहे आप, तो लेट रैंडम वेरिएबल भी नंबर ऑफ टेल्स, तो टेल्स आने की वैल्यू कितनी आ सकती है, 2 बार टॉस किया बेटा आपने कॉइन, तो टेल 0 बार आ सकता है या 1 बार या 2 बार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या, एक्स इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ टेल, तो एच एच में 0 टेल आते हैं तो इट इज पी एच इंटू पी एच, पी एच 3/4 ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 9/16 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 टेल, तो 1 टेल कहाँ का आता है, कहाँ का आता है एच टी में 1 टेल आता है और टी एच में आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी कॉमा टी एच, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी क्या आता है पी एच इंटू पी टी प्लस पी टी इंटू पी एच, है ना, तो ये वैल्यू किया 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब 2 टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इट इज पीटी इंटू पीटी 1/4 इंटू 1/4 ये, और बाद में टेबल बनाना बेटा, तो आप ये क्या करते हो इतना ये लिखने के बाद में प्रॉब्लम छोड़ देते हो, ऐसा मत करना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज एक्स की वैल्यू लिखो, टेल कितने बार आया 0 1 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी ये मिल गई 9/16 3/8 1/16। देन क्वेश्चन 26, it is observed that it rains on 12 days out of 30 days. Find the probability that it rains exactly 3 days of a week. अब रैंडम वेरिएबल ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, रैंडम वेरिएबल एक चीज नंबर ऑफ डेज इट रेन्स इन ए वीक, क्योंकि आपको क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एग्जैक्टली 3 डेज ऑफ ए वीक, कितने दिन बारिश आती है पूछा है, तो रैंडम वेरिएबल वैसा ही सिलेक्ट करो, एक्स नंबर ऑफ डेज इट रेन्स इन ए वीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है 30 में से 12 दिन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा 12/30 2/5, तो क्यू क्या होगा 5 में से 2 ले लिया पी ने तो 3 बचे क्यू के लिए, तो 3/5 क्यू आ गया, और बाद में एक्स फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन कितना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेस एग्जैक्टली 3 डेज ऑफ ए वीक आउट ऑफ 7 डेज 3 डेज, तो एन आएगा 7 और एक्स की वैल्यू आएंगी 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 निकालना है आपको, तो n 7 p 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x क्या है ncx p रेस टू s q रेस टू n माइनस x, n की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू एक्चुअली 3 है पर x लिखना, p की वैल्यू 2/5 रेस टू s 3/5 रेस टू 7 माइनस, मैंने बहुत बार बोला आपको कि यहाँ ये लिखने के लिए 1 मार्क रहता, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हो ये और इसलिए आपका 1 मार्क कटता है, तो ये लिखना चाहिए द pmf ऑफ x इज गिवन बाय, पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, और उसमें x की वैल्यू कहां से लेती है 0 से चालू होती तो n वैल्यू तक 0 1 2 3 4 अप टू 7, और ये भी लिखना नीचे इक्वल टू 0 अदरवाइज, मतलब x की वैल्यू अगर 8 रही तो प्रोबेबिलिटी 0 है, x की वैल्यू 8 आ ही नहीं सकती, तो ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं रुकता हूं 2 मिनट बेटा, ये मैं बार बार कहता हूं ये पीएमएफ फॉर्मूला, दे फॉर्मूला फॉर दिस वैल्यू ऑफ x एंड इक्वल टू 0, अदरवाइज ये लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो 1 मार्क कटता है बोर्ड में, सही है। और अब आ जाओ प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट रेन्स एग्जैक्टली 3 डेज ऑफ ए वीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पूछा, तो ये x के जगह पे 3 रखना, 7c3 और ये कैलकुलेट करो,
ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको ऐसा आंसर आता है। तो ये लॉग टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, या ऐसा भी लिखा तो भी चलता है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, सही है। तो ये भी आंसर चलेगा, ये कैलकुलेशन नहीं किया तो भी चलेगा, ये भी आंसर अलाउड है, बट बेटर है यार, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी है तो एक्सपेक्टेड, मुझे कौन सी प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है, डेसिमल में, तो डेसिमल में आंसर लाने की कोशिश करो, है ना। अब फ्रैक्शन में लिखा तो भी चलता है, ऐसी कोई बात, ये देखो ये सिंपल फॉर्म में होता भी है, तो कैलकुलेशन करो मैक्सिमम, ऐसे कोई जरूरत नहीं ये आंसर आना चाहिए, ये भी रहा तो भी मार्क मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सेक्शन डी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, तो ये तीन इक्वेशंस लिखे। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, देखो एक कांस्टेंट को राइट साइड में रख दो, एक्स वाई जेड लेफ्ट साइड में, तो मैट्रिक्स ये होगी आपकी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है 1 1 1, यहाँ तो एक्स आए नहीं इसलिए 0 1 1 और 1 1 -1, ये होगी। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स होगी वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी होगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये कैसा लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी, क्योंकि a को x से मल्टीप्लाई करोगे और b, तो ये अगर लिखोगे तो आपको ये तीन इक्वेशन मिलते हैं। अब क्या करोगे, अपने को x निकालना है ना, सॉल्व करना मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो a को कैसा हटाओगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए एक्स, इट इज ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो एक्स इज ए इनवर्स बी, यानी अपने को क्या लेना पड़ेगा, बी तो अपने पास में है, तो अपने को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात करना बेटा कि ए इनवर्स निकालने के लिए एक यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, ये जो ए है ना बेटा, ए उसका डिटर्मिनेंट जरूर बताओ, जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना है तो ये कंफर्म करो कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, समटाइम्स देयर आर मार्क्स फॉर दैट स्टेप, कभी कभी रहता है मार्क्स, तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे कैलकुलेट करो, नॉट इक्वल टू 0 रखो, यहां नहीं दिख रहा मुझे, और फिर ये यहां से चालू करो, ए इनवर्स इज, सो नोट दैट हियर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 शो करो, सही है ना। कभी कभी मार्क काट सकते हैं, कभी कभी मिल भी जाते हैं, बट ये करना है यहाँ पे, ये ख्याल में रखना ना। बाद में ए इनवर्सिस आए, ए इनवर्सिस आए, बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया बेटा आपने, तो पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे 1 0 0 लाना पड़ता, ये 1 0 है ही, यहाँ 0 कैसा करोगे, R3 माइनस R1 0 मिला, बाद में यहाँ पे 1 लाना पड़ा तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे भी बाद में क्या करोगे, ऐसा 1 1 0 0 यहाँ 1 लाना, फिर ये 2 0 लाना, फिर यहाँ पे 1 लाना, ये 2 0 लाना, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप करोगे और आप ए इनवर्स मिलाओगे। तो दूसरी बात है, आप इसको एडजॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हो, ए इनवर्स कोई भी मेथड चलती है, एडजॉइंट भी चलती है या रो ट्रांसफॉर्मेशन भी चलती है। ओके, तो एक से ए इनवर्स भी, तो अब ए इनवर्स अपने को मिल गया, तो ए इनवर्स लिखा और बी लिखा, तो इनको प्रोडक्ट कर दिए बेटा, तो 1/2 बाजू में लिखा मैंने, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, 1/2 आखिरी तक बाजू में लिखा, और फिर 1/2 अंदर लेते तो हर एक टर्म को 2 से, नंबर को 2 से डिवाइड करने से ये मिलता है, और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल, किसी ने यहां से ही छोड़ दिया प्रॉब्लम, नहीं अपने को एक्स वाई सॉल्व करना मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू लेना है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 4, जेड इक्वल टू माइनस, तो कंक्लूड अच्छे से करो, जो पूछा है ना बेटा, तो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में जो पूछा है, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके बाद में जो पूछा है उसको आखिरी सेंटेंस लिखते जाओ, therefore x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू -4, ये आखिरी लाइन आपकी होना चाहिए। क्वेश्चन 28, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ऑन वेक्टर AB। अब वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, PQ डॉट AB अपॉन मॉड AB स्क्वायर, दैट मल्टीपल ऑफ वेक्टर AB, देखो ये है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ऑन वेक्टर AB, PQ डॉट AB ये नंबर रहेगा स्केलर, मॉड AB स्क्वायर ये भी नंबर ही रहेगा, ऑफ वेक्टर AB ये स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर AB ये PQ पी क्यू ए बी अगर दिए तो आप वेक्टर पी क्यू निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर पी, पी क्यू निकाल सकते हो, ए बी निकाल सकते हो, मॉड वेक्टर ए बी भी निकाल सकते हो, बस ऐसा करना है आपको। तो देखो बेटा ये पोजीशन वेक्टर पी, ये पी के कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन वेक्टर पी क्या होगा, -2i प्लस जे प्लस 3 के, पोजीशन वेक्टर क्यू होगा 3i प्लस 2j प्लस 5 के, वैसा ही ए और बी के पोजीशन वेक्टर होंगे, तो वेक्टर पी क्यू होगा वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, ये निकाला, वेक्टर ए बी निकाला आपने, फॉर्मूला लिखा, पी क्यू डॉट ए बी ले लिया, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करते, कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करते और ऐड करते, 5 × 3 15 प्लस -2 -12, है ना। अब रूट मॉडुलस ए बी होल स्क्वायर क्या रहता है, एक्चुअली स्क्वायर है,
इसलिए क्या करोगे, इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड करो, 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा, है ना, ये आया आपका वेक्टर पोजीशन। वेक्टर पोजीशन हरदम वेक्टर में आता है। Then find the shortest distance between the lines x plus 1 by 7 equal to y plus 1 by -6 equal to z plus 1 by 1। एक लाइन दी है, दूसरी लाइन दी है x minus 3 by 1 y minus 5 by -2 z minus 7 by 1। बहुत बार बोर्ड में पूछते हैं बेटा, तो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। दो मेथड से कहता है ये, तो ये लाइन को कैसा लिख सकते हैं आप, ये है कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखते हैं, वेक्टर आर इज वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। ये लाइन में ये लाइन पास हो रही पॉइंट वेक्टर a1 वेक्टर से पॉइंट से पास हो रही, और वेक्टर b1 उसको क्या है बेटा, उसको पैरेलल है। तो ये वेक्टर a1 मतलब, अब ये पॉइंट कौन सा है लाइन पे, ये इसके साइन चेंज कर लो, जैसे x प्लस है तो -1, ये -1 और -1, तो वेक्टर a1 क्या होगा, -1 है, -1j -1k ये होगा। और वेक्टर b1 क्या होगा, ये 7 है -6j प्लस के, ये वेक्टर b1 होगा। जैसा ये वेक्टर है, तो वेक्टर आर इक्वल, ये लाइन है, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। अगर इसका वेक्टर इक्वेशन, अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का ये वेक्टर इक्वेशन होगा, तो वेक्टर a2 क्या होगा, इसका साइन चेंज कर लो, 3i प्लस 5j प्लस 7k, देख लो, प्लस म्यू टाइम्स, अब इसको पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा, i माइनस 2j प्लस k ये होगा। एंड देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अब ये फॉर्मूला है बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर b1 प्लस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2 is given by the formula a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। अब आप गलती क्या करते हो, आप वेक्टर नोटेशन नहीं लिखते, वेक्टर नोटेशन कंपल्सरी लिखना चाहिए, आप बिना वेक्टर के आंसर निकाल लेते और आपको मार्क नहीं मिलता। अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, a1 a2 है तो a2 माइनस a1 जरूर निकाल सकते हो आप, b1 क्रॉस b2 भी निकाल सकते हो आप, b1 क्रॉस b2 कैसा लेते हो, डिटर्मिनेंट से निकालते हो, b1 वेक्टर ij के, b1 के जो कोएफिशिएंट्स है ij के और b2 के, तो b1 क्रॉस b2 मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 भी निकाल, ये फॉर्मूला में रख लेना, और फिर आपको आंसर मिलेगा मॉडुलस, और ये रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड में है बेटा, तो कभी बिना मॉड के लिखते हो, तो ये -116 अपॉन है, तो ये आता है √116, इट इज 2√29। अब डिस्टेंस में 2√29 मत लिखना, यूनिट्स लिखना वहां पे, हाँ, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, नहीं होगा तो यूनिट्स, एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम होगा तो क्यूबिक यूनिट्स, ऐसे लिखते जाना बेटा, हाँ, यूनिट्स लिखना, कभी कभी मार्क्स काटते हैं उसमें। Solve the following linear programming problem. Minimize z equal to 7x plus y subject to 5x plus y greater than or equal to 5, x plus y greater than or equal to 3, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो एक्चुअली ये टेबल बना लिया ठीक है, बट टेबल के लिए मार्क नहीं रहे थे, ग्राफ के लिए मार्क रहता। तो सबसे पहले क्या करना, ये लाइन ड्रॉ करना, 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ग्राफ पे ये लाइन ड्रॉ किया आपने, सही है बेटा। अब क्या कर लो, 5-10 मिनिटं देऊ शकतो, बरं मी 5-10 मिनिटात बस 2-3 लाईन व्यवस्थित नाउ। अब देखो ये जो ना 5 प्लस वाई इक्वल टू 5 ये दो लाइंस निकाल लिया। अब देखो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये अगर 0 0 रखता मैं यहाँ पे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो नहीं होता है ना, ये नॉन ओरिजिन साइड ये इसकी, और यहाँ पे 0 0 रखता तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसकी भी नॉन ओरिजिन साइड, तो इसलिए नॉन ओरिजिन साइड पे शेडिंग करना है, तो इसके लिए 2 मार्क रहेंगे, लाइन ड्रॉ करने के लिए 1 मार्क और दूसरा शेडिंग लेने के लिए, है ना। ये बाद में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सी है बेटा, तो सी पॉइंट ग्राफ पेपर पे नहीं करना है, ये रफ स्केच करना है आपको, हाँ रफ स्केच। अब आप बोलोगे ग्राफ देते होंगे तो ठीक है, बट ग्राफ नहीं दिए तो रफ स्केच इज एक्सपेक्टेड। तो सी कैसा निकालोगे, ये दो लाइंस का इक्वेशन सॉल्व करोगे आप साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद में सी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और फिर कॉर्नर्स कौन से फिजिबल रीजन के, ये बी सी और डी, उस पे जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर मिलेगा 0.5। जेड इज मिनिमम 5 एट डी 0.5, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, ऐसा लिखना है आपको आंसर। क्वेश्चन 31 तो ये थियरम है पैरामीट्रिक वाला, आप कर सकोगे, dy by dx is dy by dt अपॉन ds by dt, ये अच्छे से करके रखो, किताब में है ये, तो ये थियरम है किताब में दिया हुआ, ये भी थियरम है,
if u and v are two differentiable functions, ये integration by parts है, integral u v dx, it is u integral v dx minus du by dx integral v dx, ये भी proof है। तो और प्रॉब्लम पूछा है एक्चुअली, I is integral log x to the base 2, तो ये बेस 2 है तो पहले इसको बेस e बना लो, यानी log x अपॉन log 2, चेंज ऑफ बेस रूल से log 2 बाजू में आएगा कांस्टेंट होके, और इंटीग्रल log x पता है आपको, इंटीग्रल log x log x माइनस x, तो 1 अपॉन log 2 ये। तो आजकल क्या होता है कि थ्योरम के साथ में प्रॉब्लम पे पूछते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, a body cools according to Newton's law from 100 degree Celsius to 60 degree in 20 minutes। 100 डिग्री था बेटा टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस पे आ गया 20 मिनट्स में, ऐसा दिया है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग 20 डिग्री दिया है, यानी थीटा 0 होगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 डिग्री दिया है। अब ये लिखना, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम t एंड थीटा 0 बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, थीटा 0 is 20 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, d थीटा बाय dt डायरेक्टली वेरीज विद थीटा माइनस थीटा। आप फिजिक्स से करते हो बेटा, अरे मैथमेटिक्स का पेपर है तो मैथमेटिक्स के मेथड से जाओ ना, काय को फिजिक्स के मेथड से करते। हाँ हाँ, तो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अब ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसलिए के माइनस आएगा, माइनस के वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखा, इंटीग्रल डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 20 माइनस के डी टी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये इक्वेशन मिला। इन इनिशियल कंडीशन, जब इनिशियल टेम्परेचर था 100 तो टी इज 0, थीटा इज 100, तो इससे आपको सी की वैल्यू मिलेंगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे इंप्रूव करो, यानी लॉग ऑफ थीटा माइनस के टी प्लस सी की वैल्यू लॉग 80 मिली, और फिर ये मिला लॉग ऑफ थीटा माइनस 20, और ये लॉग, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या था, लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 अपॉन 80 इज माइनस के टी। अब बाद में क्या बोलता है, 20 मिनट के बाद में थीटा 60 होता है, तो टी इज 20 तो थीटा इज 60, तो इससे के की वैल्यू मिलेंगी आपको, और के की वैल्यू यहाँ रखने के बाद में कैलकुलेशन करने के बाद में टी इक्वल टू 1 ओवर मिलेगा। आखिरी का प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड वाई इज एक्स प्लस 3। यहाँ डायग्राम निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बिना डायग्राम लेके आंसर दे दिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा कैसा क्या निकाला आपने आंसर। तो y इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये पैराबोला रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसका वर्टेक्स 0 3 रहता और y इक्वल एक्स प्लस 3 लाइन रहती, ये रफ स्केच लेना, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 0 3 और 4 पॉइंट मिलता है। अब ये रीजन कैसा निकालोगे बेटा, शेडेड इंक्लूडेड बिटवीन दिस, यानी एरिया अंडर द लाइन एंड एक्स एक्सिस, ये एरिया माइनस एरिया अंडर दिस कर्व, तो ऐसा करो, तो ये आएगा विच इज इक्वल टू एरिया अंडर द ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ रीजन AOD है ना। तो एरिया अंडर द ट्रेपेजियम, यानी ये ट्रेपेजियम के नीचे की एरिया क्या आएगी, इंटीग्रल y, तो ये लाइन का y, और लिमिट कहां से जाएगा, x यूनिट y ds ले रहा मैं, यानी 0 इंटीग्रल 0 to 1 ऑफ लाइन का y माइनस इंटीग्रल 0 to 1 ऑफ पैराबोला का y, पैराबोला का y क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ऐसे टाइप से किया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3, आंसर आया 1/6, 1/6 नहीं लिखना, 1/6 स्क्वायर रूट्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, and best of luck to you for your examination.